Good Hello. morning. Hi, good morning. Good Morning. morning. Good morning. Good It's Very morning. happy nice good with the morning. advent of winters in the north. Morning. It's like really beautiful. The best weather of the year, October, Good morning. November. Good morning, very good Good morning. morning, Good everyone. And wish you morning. all a very Good happy morning. Dashera. Same to you. Thank Happy you. Dussehra. Happy Dashera, ma'am. Good Dashera morning, to Same. Happy everyone. Good Dashera. morning. So the Happy day Dashera, Dashera ma'am. signifies the victory of good over evil. So we have to identify what is that one evil in our life today that we have to eradicate. है ना? दशहरा का मतलब यही होता है ना, राम जी ने like Ravan का वध किया था. He killed Ravan. So it actually signifies connotation wise victory of good over evil. So whenever Dashera comes, it is always a sign that we have to identify what is that one evil in my life that I need to remove. So maybe we can think and ponder over it. And maybe it could be laziness, it could be complacency, it could be procrastination, it could be the habit of sleeping late, it could be spending time on Instagram unnecessarily, it could be, unorganized life. It could be a cluttered cupboard. So anything for that matter. It could be some greed, holding on to things and not giving things to the others very easily. It could be दूसरों को पैसा नहीं लौटाना, like those little things. So that is actually sabotaging our life. मतलब ये छोटी चीजें नहीं होती हैं, ये tendencies and patterns होते हैं जो बहुत deeply engraved है. सो इनको हटाना छोटी छोटी सी चीजें होती है, इनकी वजह से लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं आ रही, मतलब बिलियंस नहीं आ रहे होते हैं. ये बहुत छोटी सी चीज लेकिन ये छोटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये डीप है, डीप सीटेड है और डीप रूटेड है. तो इसको हमको आइडेंटिफाई करके हटाना बहुत जरूरी होता है. सो वो हमारे लिए दशहरे का एक और मीनिंग है ना, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. सो वी हैव टू रिमूव दैट वन इविल फ्रॉम आवर लाइफ. आज हम सबका बहुत ही पावरफुल वाला चैप्टर है द मैजिक मिरर. एंड मैजिक मिरर आखिर में आया है फाइनली कि ठीक है जी, अब टाइम आ गया है, अब अपने आप को आई लव यू बोल दो. और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अपने जिंदगी के बाहर की चीजें, जो लोग हमारे आसपास हैं, वी हैव सेड थैंक यू टू एवरीबॉडी, right? And now it is our turn. Now we will look into the mirror and we will fall in love with ourselves. And we have to madly fall in love with ourselves. And that is the only way to going forward in life. I'm telling you. सब कुछ करके हम देख लें, हम कुछ भी कर लें, जब तक हमें अपने आप से प्यार नहीं होता तब तक हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते. दैट ग्रिड, दैट फायर, दैट डिटर्मिनेशन, has to come from within. This is the most important thing that we need to cultivate and build a muscle for. We will need to do that. That is to really do things for ourselves, to look after ourselves, to pamper ourselves, to generate that fire within. And that's very very important. कभी भी अगर कोई weight loss भी करता है, अगर वो किसी और के लिए कर रहा है, कि ठीक है उसको दिखाने के लिए, शादी करने के लिए, या जिस भी रीजन के लिए, तो उसका वो रीजन पता नहीं आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा. इसका मतलब ये थोड़ी कि दोबारा से आप वैसे उस वेट पे आ जाओ. बट अपने लिए फिटनेस करना, बिकॉज आई लव डूइंग इट. आई गो फॉर अ वॉक बिकॉज आई लव टू डू इट. I love to keep myself groomed because I love myself. And whichever way you are, you don't need to be perfect. कल हमने पढ़ा था ना किताब में कि you don't need to be perfect. I mean, just the way the hero में था, जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था, that nobody is born perfect. Nobody is. We might have 10 flaws, but with those flaws, we have to, love ourselves. That is the key. That is the key to moving ahead in life. चाहे हम गोरे हो, काले हो, बाल हमारे छोटे हो, थिनिंग हो रही है, जैसे भी जो भी है, जैसी आवाज है हमारी, जैसी भी हमारी बॉडी है, उसके साथ हम अपने आप से प्यार करें. इसके ये एक बहुत बड़ी, it's an art that we need to actually hone into our lives. So यही वाला चैप्टर है द मैजिक मिरर अपने लिए. So इसमें इमेज हम देख लेते हैं. सो इमेजेस, there's a mirror, और खूब सारा ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि मिरर में ना वो इंसान नजर आ रहा है जो सामने खड़ा हुआ है, इसलिए ग्रेटिट्यूड है. अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना, वाह कि आप कितने स्पेशल हो. और इसमें ब्लैक शूज है, व्हाइट शूज है. इसका मतलब है जैसे भी शूज पहने, मतलब जैसे भी आप हो, नेगेटिविटीज हैं, पॉजिटिविटीज हैं, डज नॉट मैटर. वी आर ऑल वर्क इनटू कंस्ट्रक्शन ऑल आवर लाइव्स. वी आर ऑल बिल्डिंग इनटू मेकिंग
ओके सो हम कभी परफेक्ट हो नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। परफेक्ट होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, इसका मतलब है आपकी ग्रोथ खत्म हो गई है, उसके बाद फिर डाउनवर्ड डी ग्रोथ शुरू होती है। सो जस्ट द वे वी आर, वेदर यू आर वेयरिंग अ ब्लैक शू और अ व्हाइट शू, जैसे भी आप हो, ठीक है, यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड यू रियली ओ टू थैंक यू योरसेल्फ। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम पढ़ते हैं ये ब्यूटीफुल चैप्टर। यस शिबा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आपका यूएस में। Yes, good morning, everyone. Good evening. My name is Shiva. Thank you in advance for listening to me. All right, day 27, the magic mirror. Quote, the appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Unquote. Khalil Gibran, 1883 to 1931, poet and artist. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about the situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that. Your world, your world magically changes because you changed. So what are you attracting? So what you are attracting changed too. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted thousands of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror, and your world will change. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I'm not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, what you take those negative feelings with you in every moment. And those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. When you're grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Quote, whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has, even what he or she has will be taken from him or her. Unquote.
To do the magic mirror practice, go to the mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you've used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today and say the magic words, thank you, every time you look at yourself in the mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the mirror and say 3 things about yourself that you're grateful for. If for any reason in the future you're not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you're grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you're grateful, you don't criticize yourself when you're not perfect. When you're grateful for being you, you're happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Magic practice number 27, the magic mirror. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, each time you look at yourself in the mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Third, if you're really brave, while looking in the mirror, say 3 things you're grateful for about yourself. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Shiva, for reading so beautifully. Thank you. So the most important chapter here actually of the whole book, जहाँ पे हम अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को बहुत ट्रबल किया है, हमने लोगों की वजह से भी अपने आप को ट्रबल किया है, पीपल हु आर आउटसाइड आवर लाइव्स, उनकी वजह से अपने आप को ट्रबल किया है, हमने अपनी वैल्यू को बहुत कम किया है लोगों के सामने, लिटरली, isn't it? We've devalued ourselves. हमने अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत ज्यादा कम किया है, ऑल आवर लाइव्स, हमने अपने आप को सेकेंडरी रखा है। किसी भी कोई भी डिसीजन लेते हुए कभी भी अपनी चॉइस को या अपने ओपिनियन को हमने खुद ही नहीं इंपॉर्टेंस दी है। फॉरगेट अबाउट अदर्स, कहते हैं कि अदर्स विल गिव वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस टू ओनली व्हेन यू गिव वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ, isn't it? But we've not done it because most of the women I think वो इस तरह ही conditioned होती हैं कि पहले वो of course parents and brothers, मतलब parents होते हैं, so fathers and brothers होते हैं, उसके बाद husbands होते हैं, in-laws होते हैं, so generally women, so they have never really got that kind of a foothold or a standing in their life where they could actually go ahead and speak out for what they want and unconditionally love themselves. अभी हम सीख रहे हैं, अभी कुछ महीनों से हम maybe for a year मैजिक बुक हमारे साथ है, तो हमको अपनी वैल्यू पता लगी है, हमको ये पता लगी कि हमको किस तरह से अपनी जिंदगी अपने तरीके से बनानी चाहिए, while at the same time giving a lot of importance and love to everybody around, because of course हम looking down तो हम करते नहीं है किसी को, है ना, that is not in our DNA anymore.
So wo that's out of the system. But otherwise also it is so important for us to now start valuing ourselves, pamper ourselves, spending time with ourselves, loving ourselves, falling in love with ourselves, doing the things that you love, thinking more about the things that you want to do, अपनी ड्रीम्स के बारे में फाइनली सोचना शुरू करना, ये सारी चीजें, और अपने करंट सर्कमस्टांसेस को बदलना, so that we can move ahead and हम अपने सपनों की दुनिया जी सकें. आप में से बहुत सारे लोग पहली बार अपने घर से बाहर निकले, वेकेशंस किए, अकेले निकले. We know the story of Tejal. Amrita, she had never been out. I think वो जब दिल्ली आई थी पहली बार जून 2020 में, तो उनका शायद पहला ट्रिप ऐसे था अकेले, and she just walked in, into my office one day in Delhi, all the way from Surat. So there's so many, I mean, like these kind of anecdotes, instances, events that I remember that we've made so special. So hum apne, all everyone started looking so good also. That means that we are really taking care of them, of ourselves. So this is what that mirror practice basically is, just that जो इंसान आपको सामने नजर आ रहा है शीशे के अंदर, वो बेस्ट इंसान है इस दुनिया का, और उसके अंदर इतनी पावर है जितनी भगवान में होती है ना. कहते हैं ना, भगवान तो दिल में बसते हैं, आत्मा परमात्मा होती है. तो आत्मा तो सबके अंदर है, सोल के बिना तो एक ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती है. सो आत्मा में परमात्मा बसती है, इसका मतलब है आत्मा में ही हायर कॉन्शियसनेस है, दैट विच वी कॉल एज गॉड, isn't it? So हमको अपनी धीरे धीरे पावर पता लग रही है, हमको ये पता लग रहा है कि हम कभी विक्टिम नहीं रहेंगे, हमको ये पता लग रहा है that we have to move ahead in life and we can craft the life of our dreams by loving ourselves so much, because this now we have understood that the life outside, बाहर की जो दुनिया होती है, वो हमारा मिरर इमेज है, वो प्रतिरूप है, बिल्कुल वो एग्जैक्टली रेप्लिका है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारे क्रॉनिक थॉट्स एंड इमोशंस अभी तक हैं रेसिडुअल हमारे दिमाग में, वो उन्हीं की रेप्लिका है, वो उन्हीं का मिरर इमेज है. सो बहुत जरूरी है कि उस मिरर इमेज जो है उसको हम आई लव यू और थैंक यू बोल दें, है ना, और बोलते रहें, बार बार बोलते रहें, और अपने फ्लॉज के साथ, अपनी जो भी लिमिटेशंस एंड शॉर्टकमिंग्स हैं, जो कमियां हैं हमारे अंदर, जो चीजें जो हमको नेगेटिव लगता है, उसको हम बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें. All men, women, everybody, they need to be very, very graceful in their conduct, very dignified, okay, with 100 flaws in them, which is absolutely all right, because अगर बहुत कमियां हैं, इसका मतलब बहुत स्कोप है इम्प्रूव होने का, है ना. That means we are really going to shine in our lives. So never berate ourselves, never look down on ourselves, to never criticize our own self, never criticize our actions, but to just learn and move on. तो इसी तरह तो स्टोरी बनती है. सो जैसे बुक्स में हमने पढ़ा है, जो पीछे पढ़ी है, that write the story of your own life with your own hands. Okay, so write the story of your own your life with your own hands, because we can craft it, we can script it. हम scripting technique भी बोलते हैं उसको, फुल मून पे करते हैं. बाय द वे इस बार फुल मून आई थिंक 28-29 को फिर से है, वेरी पावरफुल फुल मून. यूज दैट डे and write the script of your life. हम of course याद दिला देंगे आपको एक दिन पहले. So जब फुल मून आता है तो उसके 2 दिन पहले से उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, where we become a magnetic force हम बन जाते हैं, है ना. सो जो हम लिखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, वो चीज हम मैग्नेटाइज कर लेते हैं, मतलब वो चुंबक की तरह हमारे पास आ जाती है. तो हम डेफिनेटली, वैसे तो रोज ही बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्म मुहूर्त में आप वैसे भी कुछ लिखोगे तो आप देखना कि लाइक टाइम इतना कम हो जाता है, उसका टाइम कोलैप्स हो जाता है, वो चीज आपकी पूरी होती है. तो सो ब्रह्म मुहूर्त में अगर लिखते हैं तो उसके लिए बट थोड़ा सा वो करना पड़ता है, अपने डिसिप्लिन और स्केड्यूल पे वर्क करना पड़ता है, बिकॉज लेट नाइट सो के आप कभी जल्दी नहीं उठ सकते, ठीक है. उठोगे भी तो आधा तो सेंस ही नहीं रहता है, मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा होता है, नींद इतनी आती है, ज़ॉम्बी की तरह रहते हैं. दैट इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ वी वांट, है ना. तो आज वो गुड ओवर इविल की विक्ट्री है, तो हो सकता है हमको वो चेंज करने की जरूरत है कि रोज 9 के ऊपर अगर आपका हो रहा है तो
So this is how it is. I think especially with the coming up, with the World Cup going on, it is getting difficult for people to sleep on time because बड़े exciting matches होते हैं. But किसी भी चीज external to yourself में इतने emotional investments करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ आप अपने आप पे करो. That's also self love. Nothing is going to change अगर मतलब स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है कि कोई हार रहा है कोई जीत रहा है उनको बेस्ट विश कर दो. Of course we want a country to win the World Cup and it will, okay, but इतना ज्यादा at the cost of our health and dreams and our life, because World Cup भी बहुत चलने वाला है, ठीक है? It's not ending very soon. So that is how we have to go on. So अपना समय से सो के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्क्रिप्टिंग करो. ब्रह्म मुहूर्त पे जब सबसे पहले उठते हो, आप बाथरूम जब जाते हो, शीशे के सामने अपने आप को pat your back and say, well done Deepti, you are the best in the world and thank you so much for being you, and look at yourself and dil se, with इसमें लिखा हुआ है that you know have more feelings than you've had for anything else. उस feeling के साथ आप अपने आप को thank you बोलो और अपनी 3 तारीफ रोज करो. वैसे तो ये सिर्फ आज की प्रैक्टिस के लिए बोला हुआ है, but 3 तारीफ रोज करो. 3 things that you can praise in yourself, that you have to look into the mirror and speak. कोई भी 3 चीजें that you really love about yourself. Suppose yesterday you had done something, like I made Sonika's birthday. It was like, my coworker and my teammate. So it was a birthday. So I made it so special. I literally looked for some nice gift for her. And then I ordered cake and flowers. And then I ordered a stool for her. So that came yesterday. The stool came in the night. So usko 3rd gift milega abhi. So I was feeling so good about it. I mean, I gave so much of value to my day. I mean, I made it so special. I put on all the groups, happy birthday, so that so many people, could bless her. So बहुत वो किया. कल बहुत important काम किए. कोई special offers निकाले. अपनी कंपनी में मेरा एंटी ओबेसिटी मंथ शुरू होने वाला है. कैंपेन चलता है हर नवंबर में, तो वो मुझे डिजाइन करना पड़ता है. So I did that. I crafted it. So there's so much I did. So then in the night, so actually giving a pat on my back that well done Deepti, you're the best. And keep doing more and more. And this I'm doing when I'm looking into the mirror. आप शीशे में देख के अपने आप को, आपकी अपनी तारीफ, अपने अचीवमेंट्स, अगर छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस आपने कभी किया हो, या कोई भी ऐसी चीज कि आपकी नाक बहुत सुंदर है, आपकी आंखें बहुत सुंदर है, अपनी तारीफ करो, ठीक है? तो रोज हमको अपनी 3 तारीफ करनी है. उस एनर्जी के साथ जब हम अपने आप को कैरी करेंगे, अपने आप ग्रेस एंड डिग्निटी हमारी लाइफ में आएगी. और उसके बाद जो आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनको बदलते हुए देखोगे. तो इट्स नॉट दैट लोग, इवेंट्स एंड पीपल बदल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ रहे हैं. वो हमारा विजन बदलता जा रहा है, क्योंकि प्यार इतना अंदर भरा हुआ है ना, तो बाहर से इतना प्यार मिलेगा, इनसेन अमाउंट ऑफ लव मिलेगा. जब आप अपनी तारीफ करते हैं तो अपने आप बाहर की सारी चीजें ऐसे मिलेंगी. और फिर विक्ट्री तो डेफिनेटली आनी ही है, जिस भी फील्ड में है. जो भी प्रोटेक्शन मिलने लग जाएगा आपको. ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके करियर को आगे लेके जाएंगे. हो सकता है अभी तक आपने करियर के बारे में सोचा ही नहीं है, लेकिन आपको एक विजन मिलेगा. कोई आके आपको बोलेगा व्हाई डोंट वी स्टार्ट दिस, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बी सुपर सक्सेसफुल. वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी. 3rd में कुछ और हो जाएगा. सो लाइफ विल ओनली मूव फॉरवर्ड एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस जर्नी ऑफ लाइफ. दिस इज हाउ इट वर्क्स. जब मिरर प्रैक्टिस और शीशे में देख के हम अपने आप को थैंक यू बोलते हैं और अपनी तारीफ करते हैं. अपने आप को आई लव यू बोलना बहुत जरूरी है. तो वो LRAG प्रैक्टिस है, हम इसमें डाल देंगे. तो जिंदगी में 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला होता है अपनी, मतलब ये चैप्टर के अलावा मैं बता रही हूँ आपको. पहला होता है आपकी सोर्स रिलेशनशिप कैसी है. सोर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है आपके माँ बाप, ठीक है? तो अगर माँ बाप सोर्स रिलेशनशिप में कहीं पे कुछ फ्लॉ है, वहां पे कहीं कुछ गड़बड़ है, तो फिर जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है? बिकॉज मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. आप में से बहुत सारे लोग थे नहीं जब मैं बहुत बात करती थी सोर्स रिलेशनशिप की. मम्मी और पापा, ठीक है, जहां से आप निकले हुए हो, सो दे आर द ओरिजिन ऑफ योर लाइफ. सो अगर वहां गंदगी होती है ना, तो आपकी जिंदगी में कभी रिलेशनशिप साफ नहीं होंगी, ठीक है? एग्जाम्पल मैंने मेटाफोरिकली पहले गंगोत्री का दिया था. गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं.
अगर गंगोत्री से पानी गंदा आ रहा हो तो आगे आप कितनी भी सफाई कर लो तो कुछ टाइम के लिए वो साफ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से गंदा पानी आने लग जाएगा, तो जिंदगी में सफाई नहीं होगी कभी भी, है ना। तो इसलिए सोर्स रिलेशनशिप अपनी जो है उसमें गंदगी मत आने दो, ठीक है। चाहे कुछ भी किया हो माँ बाप ने, आपको उनकी की भी हरकतें नहीं पसंद है, उन्होंने रूडली आपसे कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन उस एरिया को एकदम साफ सुथरा रखो, चमकता हुआ, ठीक है, बाय राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर मदर एंड फॉर योर फादर। चाहे उन्होंने आपको प्रॉपर्टी दी हो नहीं दी हो, ठीक है, सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है ना। तो हमारे कर्मास के हिसाब से हम आगे बहुत क्रिएट करेंगे। हमको जरूरत ही नहीं है चाहे उन्होंने इतना दिया हो या उतना दिया हो, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी करके लिख के दे सकती हूँ कि आपकी प्रॉपर्टीज जिनको भी सपोज आपके ब्रदर को या सिस्टर्स को मतलब अनइक्वली बांटी है सपोज, है ना, अगर हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा वो हो जाती है कभी कभी, तो अनइक्वली दिए है, आपको लगता है कि आपको अपना फेयर शेयर नहीं मिला है, वेल डजंट मैटर, you know what, like you're going to have 5 times more properties than your siblings, because अगर इस gratitude की जर्नी में आपने bless कर दिया gratitude और आपकी ड्रीम लिस्ट में आ गया to build a beautiful new house in so and so city, I can guarantee that you're going to have that. There is no prayer that goes unanswered, that's very very clear. ओके, सो इसलिए उस रिलेशनशिप को क्लीन करो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, नहीं तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़, जिंदगी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है। बिकॉज जिन लोगों की वजह से आप इस दुनिया में आए हो, उन लोगों को अगर वहां वही गंगोत्री में गंदगी मत रखो, ठीक है, बिल्कुल नहीं। हमको इनवेरिएबली, चाहे आप बोल के करो या लिख के करो या अपने मन में करो, आउट लाउड करो, वॉक करते करते करो, वॉक करते करते, बट रोज अपने मम्मी और अपने पापा के लिए 10 ब्लेसिंग्स करो, बोल के कर लो बेशक व्हेन यू गो आउट फॉर अ वॉक, और वो मोमेंट्स ध्यान करो बचपन वाले जब वो आउट ऑफ द वे गए हैं और किस तरह उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है, ठीक है, बिकॉज उसके बिना आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, दैट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो 10 अपनी मम्मी के लिए, 10 अपने पापा के लिए, चाहे वो इस दुनिया में अभी हैं या नहीं है, दिस इज इमटेरियल, सो डू दिस फॉर देम एंड थिंक ऑफ मोर मोमेंट्स व्हेन दे हैव डन थिंग्स फॉर यू, ठीक है। मदर के लिए सोचो क्या क्या किया था, कि अच्छा एक दिन आपको ऐसे बोला था तो उन्होंने आपके लिए बूंदी रायता बनाया था, बहुत टेस्टी था, फिर उन्होंने कुछ वो लेके आई थी तो उन्होंने बचा के आपके लिए रख लिया था कि वो आपको खिलाएंगी, ठीक है। वो बहुत थकी हुई, अगर किसी दिन बहुत थक गए थे, इतने मेहमान घर में आए हुए थे, लेकिन उन्होंने लाइक बहुत प्यार से सबको खाना खिलाती थी बैठ के, अपने बारे में बिना, उनको भी तो भूख लग रही होगी उस टाइम, लेकिन वो गरम गरम चपातीज पूरीज जो भी है वो खिलाती थी हर फेस्टिवल पे। आज क्योंकि फेस्टिवल है, इंडियन फेस्टिवल है और पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, तो किस तरह वो हर फेस्टिवल को किस तरह से कितना स्पेशल बनाती थी, और उनकी वजह से आपने सीखा कि किस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है ना, उन्होंने ही सिखाया था, हमको कहाँ आता था बचपन से, देख देख के ही तो सीखे हैं। तो वो मोमेंट्स याद रखो। फिर दिवाली पे वो कैसे करती थी, या जो भी ओणम अगर फेस्टिवल है आप लोग के, हम सब अलग अलग स्टेट्स के हैं, तो जो भी आपका रिलीजन है, लाइक इफ यू आर इन द साउथ यू सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, सो हाउ मदर्स हैव मेड एवरी फेस्टिवल सो स्पेशल। हैड मॉम्स नॉट बीन देयर वी वुडंट इवन हैव नोन हाउ टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, है ना, फ्रॉम योर दादीज एंड नानीज एंड मदर्स, किस तरह मम्मा कोई भी चीज मांगते थे वो फट से बनाती थी, कभी बोलते थे कि मुझे आपके हाथ का ये खाना है तो झट से वो बन के आ जाता था, कभी पैसे चाहिए होते थे पापा फट से दे देते थे, जिद करते थे हम लोग कि हमको बाइसिकल खरीदनी है, फिर उसके बाद आया कि हमको वायर्स वाली बाइसिकल खरीदनी है, फिर वो चाहे लाइक उनको पैसे की कमी, हमको तो पता भी नहीं है कि कैसे स्ट्रगल है, उनके क्या इन्वेस्टमेंट्स चल रहे होते थे, बट वो ला के देते थे ना। रोज खाना, अच्छे अच्छे घरों में हम लोग रहे हैं बचपन से, ठीक है, इतना पैसा माँ बाप देते आ रहे हैं, तो इसलिए सोर्स रिलेशनशिप को अपना साफ रखो, और उसमें जितनी अटेंशन आप दोगे उतनी आपकी जिंदगी आगे की अच्छी होती जाएगी, और आपके रोड ब्लॉक्स हटते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये बहुत पावरफुल लाइट होती है, जैसे सूरज जब चमकता है तो शायद फायर फ्लाइज जुगनू दिखते नहीं है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जुगनू होते नहीं है, बट सूरज चमकता है तो वो दिखते नहीं है। वैसे ही माँ बाप के लिए जब ग्रैटिट्यूड आपकी जिंदगी से जाता है
तो ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ये सब फायरफ्लाइज बन जाती हैं, ये दिखेंगी ही नहीं आपको, और आपकी जिंदगी आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ती जाएगी। तो यह पहली चीज जिंदगी की सोर्स रिलेशनशिप, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना, और कभी गलती से भी मुंह से ऐसा शब्द मत बोलना विच इज डाउनग्रेडिंग योर पेरेंट्स। ओके, एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सेल इन लाइफ, चाहे माँ बाप ने प्रॉपर्टीज दी हो नहीं दी हो, जब आप घर खरीदोगे तो सबसे पहले उस मम्मी पापा को बताना, कोई बड़ा अचीवमेंट है सबसे पहले उनको बताना। कोई भी ऐसा मतलब आपको कोई कामयाबी हासिल हुई है, मे बी पहली पेमेंट मिली है या वट एवर इट इज, यू नो, या पहला कोई बिजनेस डील मिला है बहुत बड़ा ऐसा, तो सबसे पहले उनको बताना। अगर वो नहीं है, अगर सिंगल पेरेंट है अभी, तो उनको बता सकते हैं। अगर नहीं है तो वो सुन रहे हैं कहीं पे, उनका जहाँ पे भी फोटो लगी है आप वहां पे जाके उनसे बात कर सकते हो, बिकॉज वो उनके कान तक हमारी सारी बात पहुंच रही होती है, ठीक है। देयर इज नथिंग, क्योंकि अब वो क्योंकि सुपर पावर बन गए, तो वो हमारे थॉट्स एंड, है ना, हायर कॉन्शियसनेस में जब चले जाते हैं, जब ट्रांजिशन लेते हैं, तो आपका एक्सेस ज्यादा हो जाता है, यू नो, तो वो हमको एक्सेस कर सकते हैं। हम उनको एक्सेस सिर्फ फोटो के थ्रू करेंगे, बट वो हमारे दिल में घुस के, हमारे दिमाग में घुस के एक्सेस करते हैं हमारी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी चीज ये वाली है, मिरर वर्क इज अपने आप, you are the most important person. I keep telling that 3 most important people, I, me, myself, ठीक है, ये दूसरी चीज है। तो ये पैरेलली चलते हैं, पहला सोर्स रिलेशनशिप और दूसरा अपने लिए प्यार, ठीक है, ये दोनों पैरेलली रखो तो आपकी जिंदगी निकल पड़ेगी। फिर कुछ भी मायने नहीं रखता, सब कुछ आप देखना कि मतलब दिल में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि अच्छे इंसान नहीं है, ठीक है, हमको लगता है ना कई बार कि ये अच्छे इंसान नहीं है, इनके पास कितनी बरकत हो रही है, इनका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, और यू नो बहुत ही क्रिकेट है जो भी है, बट ना वो लिटरली अपने माँ बाप के श्रवण कुमार होते हैं, इसलिए उनका बिजनेस चल रहा होता है। यू नो व्हाट इज माँ बाप के श्रवण कुमार, राइट? इट इज दैट दे आर वेरी डिवोटेड टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, चाहे वो कैसे भी इंसान हो, बट वो पेरेंट्स वाला डिवोशन है ना, वो उनको जिंदगी में आगे बढ़ने देता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे साथ, क्या नहीं करते हैं, कहते हैं ना, योर ग्रैटिट्यूड शुड नॉट डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, है ना, योर ग्रैटिट्यूड शुड नॉट डिपेंड ऑन द बिहेवियर एंड डेफिनेटली नॉट ऑफ द पेरेंट्स। वो तो बिजनेस हो गया। फिर बिजनेस में और माँ बाप और बच्चों के रिश्तों में डिफरेंस क्या है? अगर हर चीज में हम पैसे, जैसे शादियां भी आजकल लोग करते हैं तो बहुत ही बिजनेस अरेंजमेंट होता है वो, तो उसका फिर फायदा क्या है? वो बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप को अलग अलग रखना चाहिए, तभी जिंदगी बहुत सुखी होती है ना। तो ये कैलिल गिब्रान का वो है, द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस एंड दस वी सी मैजिक एंड ब्यूटी। तो अपने अंदर ब्यूटी देखोगे तो अपने आप ही, अपनी आंखों में ही ब्यूटी है, कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सो ब्यूटी लाइज इन द, मतलब सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है। सो सुंदरता जब आंखें, मतलब अपनी आंखों में बिल्कुल स्क्रबिंग पॉलिशिंग हो जाएगी, ऑब्वियसली आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, है ना। जैसे लाल चश्मा लगा के आपको सब लाल दिखेगा, हरा चश्मा लगा के आपको सब हरा दिखेगा, वैसे ही यू नो आपका सुंदर चश्मा लगा के आप सबको सुंदर दिखेगा, आंखों में ही सुंदरता होती है। तो अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप सब प्यारे ही लगेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। सो इस प्रैक्टिस में बस इतना ही है और इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, जितना हमने समझा दिया। So that is what it is. We just straight away go to the practices now, जो हमको करनी चाहिए। बस इन बातों का ध्यान से याद रखना, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है, जब आप अपने आप से प्यार करोगे, मिरर में देख के अपने आप को थैंक यू बोलोगे, देन यू विल बिकम अ मैग्नेट टू हैप्पी पीपल, हैप्पी सिचुएशंस एंड मैजिकल सर्कमस्टांसेस विच विल सराउंड यू वेरेवर यू गो एंड व्हाटएवर यू डू। अब जहां जाओगे, जो करोगे, कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड इज पोर्टेबल तो पोर्टेबल ही होता है। तो इसलिए सो इट सेज, व्हेन यू कैन सी द मैजिक इन दैट पर्सन इन द मिरर, your whole world will change. Okay, so that is how it is. करके देखो, मजा आएगा। अपनी रोज तारीफ, अपनी रोज 3 तारीफ किया करो, सिर्फ 3, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 3 तारीफ बहुत है, ठीक है, बस इतनी सी। सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर, और एलरैग प्रैक्टिस हम डाल देंगे। एलरैग इज LRAG। एल इज आई लव यू दीप्ति, शीशे में देख के
I love you, Deepti, for who you are, and I also love you, Deepti, for who you are not. यानी कि मेरी जो खूबियां है उसके लिए मैं लव करती हूँ तुमसे, और जो मेरी कमियां हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, मैं उनके लिए भी आपसे प्यार करती हूँ. तो आप अपने आप को बोल रहे हो कि मुझे आपकी खूबियां भी पसंद है और मुझे आपकी कमियां भी बहुत पसंद है. ठीक है. रैग इज, आर इज रिस्पेक्ट. आई लव यू, Deepti, for who you are, and I also love you, Deepti, for who you are not. I respect you. I'll rag. ठीक है. A is accept. I accept you, Deepti, for who you are, and I also accept you, Deepti, for who you are not. And G is grateful. I'm very grateful to you, Deepti, for whatever you've done in your life, and I'm very grateful to you, Deepti, for whatever you've not done in your life. Okay, so that means I love you just the way you are. And I know that you're becoming a better and better version of yourself every day. ठीक है. इसके अलावा आपको जो बोलना है बोल दो. फिर द मैजिक मिरर प्रैक्टिस में सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स, हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनको रीड करना है, और उसके बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. क्योंकि जैसे ही आप 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो अपनी काउंट माई ब्लेसिंग्स में, वैसे ही क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है यूनिवर्स में. ठीक है. और चीजें असेंबल होनी शुरू हो जाएंगी टू गिव यू मोर ऑफ दैट. जैसे अगर आपने बोला दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट हेल्थ and for my immunity because that makes me feel so healthy and energized, है ना. अगर आपने ये लिखा है, जैसे ही आपने उसको रीड करके 3 बार थैंक यू बोला, यूनिवर्स स्टार्ट्स recreating that thing for you, and now you will feel even better and more better and more better. It's like that. ठीक है. तो इसलिए हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू आउट लाउड बोलते हैं. इसमें मन में लिखने का ऑप्शन है नहीं, आउट लाउड ही बोलना पड़ेगा. देन आज पूरे दिन जितनी भी बार शीशा सामने आता है, ठीक है, उतनी बार डेलिबरेटली जाओ शीशे के सामने, थैंक यू अपने आप को बोलने के लिए. अगर आप लोग किसी बिल्डिंग्स में रहते हो, टॉल बिल्डिंग्स में, लिफ्ट में मिरर्स होते हैं, जरूर से उसमें देख के थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो अपने आप को. बाथरूम में मिरर्स होते हैं, जितनी बार बाथरूम, कम से कम हम 6-7 बार तो बाथरूम में जाते ही है ना, तब थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो अपने आप को. फिर उसके बाद जब मिरर, बेडरूम्स में सबके मिरर होते हैं, या मतलब अलग अलग रूम्स में, सब में तो लिविंग रूम में भी मिरर है, सो तब थैंक यू बोलो. और जब मिरर है ही नहीं तो सेल्फी कैमरा खोलो और अपनी तारीफ करो और अपने आप को थैंक यू, आई लव यू बोलो. ठीक है. इतना पेनिट्रेट कर लो थैंक यू अपने सबकॉन्शियस में, अपने आप को देख के, फॉर दैट पर्सन इन द मिरर, कि आपको अपने से प्यार हो जाए, मोहब्बत टाइप्स, दैट वे. And then इसमें लिखा हुआ, if you're really brave while looking in the mirror, say 3 things you're grateful for about yourself. अपनी जिंदगी में आप अपने आप को किस लिए थैंक यू बोल रहे हो, 3 चीजों के बारे में. बट 3 तारीफ तो भाई रोज बनती है हमारे लिए, है ना. तो रोज करेंगे, आज तो करनी है, आज तो 3 करनी है, रोज करनी है. एंड देन रात को सोने के पहले होल्ड दैट मैजिक रॉक इन योर हैंड, मुट्ठी बंद करो, सुबह से रात तक सोचो क्या क्या हुआ था, फिर ये किया था, फिर वो क्या था, उसने आज मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, उसने मुझे स्माइल किया, कितनी सुंदर स्माइल थी, ये वो पूरे सब कुछ. कल पता है क्या हुआ कि मैं आपसे ऐसी बात कर रही थी सुबह जब हम सेशन में थे, तो मैंने पता नहीं ऐसे रैंडमली सोच के ऐसे एक एग्जांपल दिया कि मान ली 2 बच्चे पार्क में खेल रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप उनको रुक के देख रहे हो, तो उसको भी आप इसमें मैजिक रॉक में सोचो, बोला था ना. एंड उसके बाद जब मैं जैसे ही स्टेप डाउन फॉर माई रन, मैंने देखा 2 इतने प्यारे बच्चे, यू नो, मतलब देखो रिक्रिएशन का प्रोसेस कैसे होता है. किसी भी चीज को लव के साथ बोलो या कोई भी बोलो, इतने प्यारे से 2 बच्चे थे. तो मैं एक्चुअली आई डिडंट स्टॉप एंड लुक एट देम, बट या आई टर्न्ड अराउंड, मतलब मैं आगे बढ़ गई थी, मैं मुड़ मुड़ के उनको देख रही थी, तो इतने प्यारे उनको देख के आई वाज स्माइलिंग एंड आई वाज थिंकिंग, मैंने लिटरली ऐसे करके कहा थैंक यू यूनिवर्स. मतलब कुछ भी ऐसे हम रैंडमली भी बोल देते हैं, उसे पावर ऑफ वर्ड्स पता लगती है ना. मतलब आई जस्ट स्पोक लाइक दैट, और बिना मतलब माइंडलेसली कोई चीज ऐसी मुंह से निकल जाती है, तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया था. एक्चुअली तो इतने प्यारे बच्चे, वो एक तो साइकिल चला रहा था, वो इतना डर रहा था रोड पे जाके, इतना गोलू मोलू सा सुंदर सा. सो फिर वो, अब उसके दादू थे साथ में जो पीछे, तो दादू तो दौड़ नहीं पाएंगे ना उसकी साइकिल के साथ में, तो फिर वो रुक के, दादू दादू वेयर आर यू नो, कम सून, वॉक फास्ट, एंड इट वाज लाइक दैट. तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा. तो मुझे ये याद आया, मैंने अभी तो ये बोला था 20 मिनट पहले, यू नो, सेशन में ऐसे ही हम बात कर रहे थे, एंड आई रिक्रिएटेड दैट एग्जैक्ट सिनेरियो देयर.
right opposite to the park, because I had also mentioned park ke paas mein. So that's how beautiful life is, and this is also the power of words. So yeah, that's it for this book. We go to the other book, which is The Hero. और कल हमने पढ़ा था कि जितनी भी टफ सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आती हैं और जितने भी ऑड्स आते हैं हमारे रास्ते में, वो सारे कैटलिस्ट होते हैं हमारी जिंदगी को आगे की तरफ प्रोपेल करने के लिए। जैसे रॉकेट से नीचे से फायर निकलती है तभी रॉकेट ऊपर जाता है ना, उस तरीके से। सो आज हम अब पीटर फोयो के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, आभा जी आप पढ़ रहे हैं? Are you Yes, there? ma'am. Yeah. Good morning. Good morning. So Peter how's Foy. Australia doing? So आज दोनों हिंदुस्तान में नहीं है जिन्होंने पढ़ा। शीबा from Texas, US, and Abha ji, you're in Australia? Yeah, at Melbourne. Melbourne, yeah. So yes, thank you to the Zoom technology and to the online portals that we can all be connected from different parts of the world, which is the beauty. Yes, please Yeah. start reading. Their names rhyme to Shiba and kind of. हाँ, शिबा आभा. Yeah. Abha, yes. Yes, Okay. Abha ji. Peter Foyo, President Nextel Communications, Mexico. My parents were immigrants to the United States, and we started with nothing. I remember having my pants above my ankles. My father was a general in the country he came from, and when he got to the United States, he ended up being a chimney sweeper. Yeah. Laird This Hamilton. is Yeah. 1 second. So this person we are studying about is called Peter Foyo, and he was the first person to start wireless communication. तो तब तो वॉकी टॉकी का जमाना था, लेकिन यही तो आगे जाके इवॉल्व होके मोबाइल फोन्स बने। So he was the first person who was the pioneer. जैसे राइट ब्रदर्स थे तो उन्होंने एरोप्लेन बनाए थे तो उसमें लोग नहीं बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये स्टीम देख के उन्होंने देखा कि पानी नीचे उबल रहा है और उससे उसकी वजह से जो पानी के वेसल के ऊपर जो प्लेट पड़ी है दैट्स गोइंग अप इन द एयर, तो उससे उनको आइडिया आया कि ऐसा कुछ नहीं बना सकते कि जिससे हवा में ही चला जाए। और फिर उन्होंने वो फर्स्ट एयरक्राफ्ट बनाया जो बहुत छोटा सा था। उसकी मतलब उन दोनों की सोच की वजह से दे द पायोनियर्स ना, तो पूरा क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है ना, राइट ब्रदर्स को, कि उन्होंने वो प्लेन का कॉन्सेप्ट बनाया। किस तरह से होता है कि आज हम इतनी आराम से ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड हैं, हम कहीं पे भी उठ के बस चले जाते हैं, है ना, सो इजिली वी कैन ट्रैवल। इतने बड़े बड़े लाइक पता भी नहीं लगता है, लाइक 1.5 घंटे में आप यहाँ से बॉम्बे, यहाँ से गोवा पहुंच जाते हो। सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम। सिमिलरली जो मोबाइल फोन्स का पूरा लुत्फ हम उठा रहे हैं, pura, we enjoy the communication, that's because of this person, Peter Foyo. Okay, so he says that United States or unke father was a chimney sweeper, and this is how he started his journey from nothing. Yeah. Laird Hamilton, big wave surfer. I grew up in a racially tense environment that had people hating me for how I was born. I had all the disadvantages required for success. Larry Ellison, co-founder of Oracle Corporation. Okay, so it's about him, Laird Hamilton, big wave surfer. So one thing I know about him is that he by far is the most good looking guy in this world. He was a model actually. Okay, and इन्होंने मतलब इतना अलग अलग तरह की सर्फिंग स्क्वाड शुरू किए थे जब ये शुरू किया था। सर्फिंग ये अभी भी करते हैं। So, and then of course, like he made some of the best world records and people would just go to watch his surfing. Itna acha, while inka ek aur profession tha modeling ka, because of his good looks. Tall guy, 6'2", 6'2", 6'3", very good looking person. Okay, so he was modeling and he was a surfer, started from nothing. And he became one money person, and even for brand endorsements, he would charge so much, once he became famous with all this. So
he said that he grew up in a racially tense environment and had people hating him for how he was born. So सबका root इतना ज़्यादा वो है turbulent. हाँ जी. John Paul DeJoria, co-founder, John Paul Michel Systems. I was 23 years old and my son was 2.5, and my wife at the time had left. Our rent wasn't paid for 3 months, so they kicked us out. We ended up sleeping in the car. The way we survived was we would go around collecting soda bottles and cash them in. Yeah, so इनके chain of salons है. ये जो पर्सन है जॉन पॉल मिशेल. सो गेटिंग टू नो देम बिकॉज हम इनकी पूरी कहानी और किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़े हम पूरा ये पढ़ेंगे आगे जाके, बिकॉज दे आर द हीरोज वी आर सेंटरिंग एंड वी लर्निंग फ्रॉम. सो इनका भी स्टार्ट ऑफ द लाइफ वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट वाज लाइक इन्होंने पैसे कैसे कमाए. इनका 2.5 साल का बेटा था, बीवी इनको छोड़ के चली गई थी, तो ये बस अपने बेटे के साथ रह गए थे. तो इन लोगों ने सोडा बॉटल्स कलेक्ट की और उसको ट्रैश में बेचा. उससे उन्होंने पैसे कमाए और उसी से उन्होंने अपना लाइवलीहुड किया. हाँ जी. From these circumstances, as a young adult, it's hard to believe that John Paul DeJoria went on to create the hugely successful hair product company, John Paul Michel Systems. John Paul created a life for himself that is unrecognizable from the life he began with, and he did it by using qualities that you have within you now. So रोंडा बर्न ये भी बोल रही हैं कि ये जिस मुकाम पे जिंदगी में पहुंचे, जो क्वालिटीज उनके अंदर थी वो सब आपके अंदर है, वो अभी है. इट्स नॉट दैट आपको उसके लिए कहीं जाना है या कुछ सीखने की जरूरत है, वो अभी है, बस उनको एक्टिवेट करना है, जो हम सीखेंगे आगे बुक में. हाँ जी. G.M. Rao, mechanical engineer, founder, GMR Group. I started with a zero base. My village was small, only 5,000 people. There was no telephone and no power. We had one bottle of iced water that we would share, and we had to line up for our quota of sugar and milk for the month. Whether you were born in India, Australia, the United States, France, or Singapore, the circumstances of your beginnings do not dictate the kind of life you will lead. There is not a single human strength or quality that you are missing in order to fulfill your dreams. You have everything within you to be or do whatever you want, even if the odds appear to be against you. GMR के बाद इन्होंने बताया है, ऑफ कोर्स लाइक उनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि उनका बिल्कुल ही छोटा से गांव में रहते थे जिसमें से 5,000 लोग रहते थे. फोन और पावर तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, और बस एक आइस बॉटल होती थी जो शेयर करते थे वो लोग गर्मियों में, और शुगर और मिल्क के लिए भी उनको स्टोर अप करके रखना पड़ता था. मतलब कहाँ से आए हुए थे और कहाँ गए. तो उसके बाद रोंडा बर्न बोल रही हैं कि चाहे आप इंडिया में बॉर्न हुए, देखो सबसे पहले उन्होंने इंडिया का नाम लिखा है. वेदर यू बॉर्न इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, सिंगापुर, तो इस वक्त इनमें से 4 कंट्रीज में से तो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना. इंडिया में हम बहुत सारे बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आभा जी हैं, और भी हैं, पूनम जी भी होंगी डेफिनेटली, रचना, एंड यूएस में शिवा हैं, उन्होंने अभी पढ़ा था. एंड देन ऑफ कोर्स सिंगापुर में तो हमारी पूरी टीम है जो एक ही कॉन्डो में रहते हैं.
Okay, so it is like it says आपके circumstances आपको कभी भी limit नहीं कर सकते, and you know like इसमें लिखा है कि there is not a single human strength or quality that you are missing in order to fulfill your dreams. So we have everything that we want in our life. हमने अपने आप को limit कर रखा है, ठीक है? Universe ने हमको limit बिल्कुल नहीं कर रखा है. So you have everything within you to do whatever you want. चाहे कितनी भी परेशानियां इस वक्त लाइफ में चल रही हो. Okay, we are going to win over all of that because we are the hero of our lives. आज ही मेरा वक्त पड़ा है हमने. हाँ जी. Pete Carroll, NFL coach, Seattle Seahawks. Once I was done playing football in college, I tried out for an NFL team and then a World Football League team. But when I got cut for the last time, I really was in shock. I had no direction because everything that I had ever looked toward was about playing. I was suddenly faced with what now? After suffering a life-threatening injury as an ice hockey player, Peter Burwash went on tour playing tennis. Despite his lack of professional tennis ranking or tournament success, with no money, he survived mostly on a jar of peanut butter and a 2-day-old breadstick, which he divided into pieces to last for 5 days. After 7 years on the tennis circuit, Peter was forced to retire. And once again, he found himself in a situation where his chances for success seemed to be little to none. Yeah, so see, he had money problem and health problem. ठीक है, so he started playing football. उसके बाद NFL के वो कोच बने फुटबॉल लीग के. उसके बाद उनका आइस हॉकी खेलते खेलते इतनी मेजर इंजरी हो गई कि उनको वो स्पोर्ट ही छोड़ना पड़ा. फिर उन्होंने टेनिस खेलना थोड़ा बहुत शुरू किया. उसमें भी उनका आगे चल नहीं पाया. ही वाज फोर्स्ड टू रिटायर 7 years करने के बाद टेनिस सर्किट के बाद, और फिर से वापस लाइफ घूम के वहीं आ गई. बट डिड ही गिव अप? Later we are going to see no, he didn't. Okay, so we have to learn all these things, that there might be 100 failures, but you know, victory is assured and we have to keep moving on. Hanji. Peter Burwash, tennis coach, founder, Peter Burwash International. When it came time to form our tennis management company, there were 16 other companies doing the same thing. I had the least amount of money, financial backing, and tennis credibility. We didn't have any chairs in the office, so we had meetings on the floor for the first couple of years. It's not the conditions of the outside world that determine whether or not your dreams will be fulfilled. It's not how much money you have, how educated you are, who you know, or even how much experience you have. It's the discovery of the abilities you have within you and knowing how to use them to overcome any and every obstacle you meet in the outside world. It's what every successful person did, and you can do it too. Yeah. So इतना assurance हमको इस किताब में मिल रहा है that no matter wherever you are definitely going to exceed your own expectations and you'll keep exceeding and accelerating in your life. You know, so इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई outside circumstances है ना, वो कभी भी conditions आपको limit नहीं कर सकती हैं. ठीक है, कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो क्योंकि वो ऐसा है, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, हम मतलब हम अपने बारे में जो जानते हैं, कितना हमारे पास एक्सपीरियंस है,
it really, everything is immaterial. It's the discovery of the abilities you have within you and knowing how to use them to overcome any and every obstacle you meet in the outside world. It says that सारे successful लोग ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़े हैं, and that is the beauty of it. Michael Acton Smith, founder Mind Candy. I had a friend, Tom, who I met at university, and we decided to set up a business together. We didn't have much money. In fact, we had debts from university. We got the cash to get the business going after we saw an ad in a newspaper asking people to basically sell their bodies to medical science by taking part in a drug test for a new anti-migraine drug. We did that and got paid pound 400 each. My mom was horrified. I think that was one of the reasons why she was very supportive. She gave us pound 1,000 each, and Tom's parents let us use their attic. 10 years ago, I was doing fine in my life, climbing the ladder of success in the television industry. And then suddenly one devastating circumstance after another happened. And within a few short months, my entire life had collapsed around me. I fell into despair, but it was in this very moment that I discovered a secret that ultimately would become a movie and my first book. Even when your whole life seems to have burned to the ground, from the ashes comes new life. Yeah, so firstly, of course, it is about, this person जिन्होंने अपना बताया है, was the founder of the Mind Candy, कि किस तरह से उनके circumstances थे कि वो जैसे गिनी पिग्स को यूज करते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो जैसे हम भी जब रिसर्चेस करते हैं तो हम जनरली रैट्स पे करते थे पूरे टाइम, मतलब हमको कोई भी अगर ऐसा केमिकल डालना होता तो हम रैट्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे कंट्रोल ग्रुप में। और तो लेकिन ये एंटी माइग्रेन ड्रग लॉन्च होने वाली थी, तो ये दोनों ने अपने आप को लाइक अ गिनी पिग यूज करने दिया, दे बिकेम द गिनी पिग्स, और इनकी बॉडी में वो एंटी माइग्रेन ड्रग इंजेक्ट की हुई जिसके इनको 400 पाउंड्स मिलते थे, तो उससे ये लोग अपना बिजनेस चलाने की कोशिश करते हुए इनकी मदर ने इनको 1,000 पाउंड्स दिए कि ये लेके करो। और टॉम जो इनके फ्रेंड थे उन्होंने उनके घर में एटिक में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और फिर उसके बाद एम्पायर खड़ी कर दी। तो फिर रोंडा बर्न बताती है अपने बारे में, कह रही है कि मेरी जिंदगी भी, मतलब टेलीविजन इंडस्ट्री में मैं काम करती थी तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ कि दैट मुझे बिल्कुल सब कुछ, लाइफ मेरी कोलैप्स हो गई। और उसके बाद लेकिन मैंने भी वो सीक्रेट मूवी बनाई, और फिर उसके बाद वी नो वेयर रोंडा बर्न इज, दैट वी आर स्टडीइंग हर बुक्स टुडे एंड शी इज कॉन्स्टेंटली राइटिंग एंड लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, बिकॉज इन्होंने जो जो अपनी जिंदगी में सोचा था, उनको जैसा घर चाहिए था, शी वांटेड अ मैंशन बाय द ओशन, अ रेंज रोवर, एंड her work to reach millions of people and their lives to change, everything happened. And the same name जो हमने सीक्रेट में पढ़े थे, 10 साल के बाद हीरो लिखी उन्होंने, सीक्रेट के 10 साल के बाद हीरो में भी वही वाले नाम है, मतलब पूरा स्टाफ इनका सेम है इतने सालों में। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई कंसिस्टेंट रहे, है ना? हाँ जी, या Mastin Kipp, inspirational writer, founder, The Daily Love. When I first came to Hollywood, I wanted to be a music manager. That didn't really work out. Hollywood is not known for being the most loving environment. I started abusing drugs and alcohol, and the print is very small, ma'am. And I hit
rock bottom in 1 week. My investors pulled out my business partner and I broke up. My roommate gave me 3 days notice. I developed gout in my foot. My lower back went out, and the girl I was seeing, she and I broke up. Literally, my life fell apart in 1 week. That started a very long and painful journey that I'm very grateful I went on, but never want to do again. At the time, I felt like I was in a hurricane, and then I realized, what if it was a divine storm? That is so Mastin, sweet. I mean, I love that word, divine storm. So, Abaji will be able to read only so much today. Thank you so okay. much. Thank you, ma'am. इसका Thank फॉन्ट you. आपको छोटा लग रहा है, बट बड़ा करती हूँ तो ये पेज निकल जाता है, मतलब ये पेज नहीं के मैम, बाहर होता है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है. I'll use my specs this time. अच्छा, you're not using your specs? No, I didn't need to, but somehow Okay. this appeared to be small. हाँ, the Initially, font it was might be fine. smaller than Magic. Yeah, Yeah. it is. Okay, Thank you so so this much. is about Hanji. सो दिस इज अबाउट मास्टन किप, इंस्पिरेशनल राइटर एंड फाउंडर जो थे, तो उन्होंने बताया अपनी पूरी मतलब पुरानी वाली कहानी बताई है कि कहाँ से वो निकल के आए, दैट वो हॉलीवुड गए, हॉलीवुड का बिल्कुल उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, फिर बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ स्ट्रेस जो उनके मतलब मन में रहने लगा, तो उसके कारण उन्होंने ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लिया, और ऑब्वियसली उसके बाद इनकी जिंदगी नीचे जाती गई, उनके इन्वेस्टर्स चले गए, बिजनेस पार्टनर के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, उनके रूममेट ने उनको 3 दिन का नोटिस दिया और कहा घर से चले जाओ, हेल्थ में उनको गाउट हो गया जो हाई यूरिक एसिड की वजह से होता है, उनके लोअर बैक में बहुत पेन, क्योंकि लोअर बैक स्ट्रेस की निशानी होती है ना, सो लोअर बैक में उनको पेन रहने लगा, और जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनसे इनका ब्रेकअप हो गया, तो मतलब 1 हफ्ते में उनका सब कुछ खत्म हो गया, और फिर उनकी एक पेनफुल जर्नी उसके आगे शुरू हुई, बट वो चाहते नहीं थे कि कभी भी ऐसा उनके साथ जिंदगी में हो, तो उस वक्त उनको लगा कि हरिकेन आ गया है, मतलब ये तूफान आंधी ऐसा आ गया उनकी जिंदगी में, बट लास्ट में वर्ड लिखी है, व्हाट इफ इट वाज अ डिवाइन स्टॉर्म। सो डिवाइन स्टॉर्म मतलब गॉड की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है कि मेरी जिंदगी आगे बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है, सो दैट इज व्हाट इट इज. So just studying a little bit more about these people. So yeah, this is how much we are going to study today. Thank you so much. If anyone wants to add or share anything, please do. Yes, Pankaj. Yes, आपको कल share करना था. I remembered it in the morning that I'm going to ask you to share. हाँ, मेरी लाइफ में भी एक डिवाइन स्टॉर्म आया भी थोड़े टाइम पहले, लेकिन अब मैं आज अपना सोचा है मैंने कि मैं अपना क्लिनिक खोलूंगी। पहले मैं सोचती थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मेरे खुद के कस्टमर्स ने बोला कि मैम हमें आपके क्लिनिक पे आना है, तो मैंने आज ही शुरुआत, मतलब मुझे शायद 4-5 दिन लगेंगे, बिकॉज आई हैव माई ओन स्पेस, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो आई हैव 3 रूम्स, तो मैं हिम्मत करके खोल रही हूँ एंड आई एम करो जी हैप्पी। करो, बहुत अच्छा चलेगा, कोई भी नया आपको कुछ वो करना है तो बहुत अच्छी बात है. All the best, and you're going to be a super success, you know that. खुद पे विश्वास, जो आपने कहा, सेल्फ लव, एंड मैं अब ग्रजेस में जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे खुद पे बहुत विश्वास हो गया। लाइक मिरर में मैं उठती हूँ, मेरे फ्रंट में मिरर ही है, तो मैं उठी, और बहुत टाइम से मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई थी आज मैंने लिपस्टिक लगाई है क्या? मैंने कहा फ्रॉम अ लड़की लॉन्ग है टाइम आई एम नॉट वेयरिंग लिपस्टिक ड्यू टू आई हैव हाँ, लो कॉन्फिडेंस की वजह से ना, मैं लिपस्टिक नहीं लगा पा रही थी, मतलब मुझे खुद से ही आई वाज लाइक, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं मिरर में ही देख रही थी खुद को, तो आज मैंने खुद से प्यार किया है खुद से कहा है कि आई लव मी wow, this is amazing. और Good आज मेरा story. बहुत मन है, मैंने एक बहुत अपना न्यू सूट निकाला है, जो काफी टाइम से पड़ा हुआ था, एक बार भी नहीं पहना। मैं अच्छे से रेडी होंगी, दशहरा बनाऊंगी, और मैं सही बताऊं मैम, मैंने इतने सालों से कोई फेस्टिवल नहीं बनाया। अच्छा. हम्म। घर में सब बनाते हैं, बट मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता था, वही मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट करी थी, मेरा करियर मेरा करियर।
हमेशा मैंने अपने करियर के बारे में सोचा और इतनी अच्छी-अच्छी चीजें मैंने मिस कर दी। घर में इतने फंक्शंस हो रहे हैं, इतनी पार्टीज हो रही हैं, आई एम नॉट अटेंडिंग एनीथिंग। व्हाई? आई वांट टू नाउ। मेरे 2 कजिन्स की शादी है और मैं जम के नाचने वाली हूँ। मेरे डांस प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। लिपस्टिक लगा के डांस करना, हाँ। मैचिंग वाली अपने कपड़ों से मैचिंग लिपस्टिक लगा के। और अलमीरा खोली है मैंने। मेरा बर्थडे है, मैं बहुत अच्छे से अपना सोच रही हूँ, ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। लाइक मुझे अब मेरा मन करता है। कुछ टाइम के लिए तो मैंने खुद को ही बंद कर लिया था एक कमरे में, और मैं बाहर कम निकल रही थी, जाती थी, लोगों से भी बात करती थी। और वीएलसीसी में आना सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि इतने टाइम से मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। बस एक 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 रूम और एक बच्चे पढ़ाना, बस इसके आगे मेरा कोई जीवन ही नहीं था। मैंने अपने आप को इतना लिमिट कर दिया था। क्लासिकल मैंने सीखा, इतना कुछ करने के बाद एज एन आरजे मैंने शोज किए, एआईआर के साथ मैंने काम किया, एनडीटीवी पे मैंने शोज किया, मास कम्युनिकेशन छोड़ा है मैंने। और कल मैं अपना ना ऐसे कबर्ड खोल रही थी, क्योंकि मुझे ना एक जगह इंटरव्यू से कॉल आया था, तो एज अ दे वांट मी टू अपॉइंट एज अ डायटीशियन। तो मैंने सब खोला। मैंने कहा मैं अपने एक बार ना सर्टिफिकेट्स निकालती हूँ। एंड मैम इतना बड़ा पाइल है मेरे पास, मैंने इतनी पढ़ाई करी है कि मुझे ही नहीं पता मैं इतना पढ़ चुकी हूँ। और मैंने कहा तुम अपने पे डाउट कर रही हो, तुम देखो तुमने कितना कुछ किया है पंकज। कोई कोई तुम्हें कह रहा है नहीं कह रहा, ये तुम हो जो तुम खुद को पीछे कर रही हो। तुम्हारे खुद के एफर्ट्स नहीं है, तुम खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करती हो, तुम पे कोई और कौन करेगा। कल समझ में आया मुझे ये। मैं बहुत बड़े अंधेरे में थी, बट अब डिवाइन। एंड हाँ, मेरा जो उसका नाम जो है, क्लिनिक का नाम डिवाइन न्यूट्रिऑन। वाह जी, बहुत ही बढ़िया। आई हैव ऑल द डिजाइन बेस्ट टू यू, दिस इज ब्यूटीफुल। एंजॉय करो अपनी जर्नी, बिकॉज जो चीज हम फ्यूचर समझते हैं वाइब्रेशनली, दैट्स योर नाउ। मैम। You know इट्स ऑल what you बिकॉज think ऑफ is यू। future is your now. आप उस So दिन मुझे नहीं vibrationally, समझाते तो मैं नहीं निकल पाती, क्योंकि मैंने खुद को ही लॉक किया हुआ था। लाइक मैंने खुद के कीज बंद कर दिए थे, वो चाबी मेरे हाथ में ही थी। पर लग गए तुम्हारे। हाँ। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग, एंड यू आर डेफिनेटली यू नो अ हीरो, यू प्रूवन इट फ्रॉम योर लाइफ। और वो हीरो रिटर्न्स आएगा तुम्हारी बेटी के रूप में। वो ऑलरेडी शायद आ गया है ना? शी इज क्वाइट अ हरिकेन, आई बिलीव। उसकी कहानियां तुमने मुझे सुनाई हुई है मैम शी इज लाइक, वो आपको भी मोटिवेशनल स्पीच दे देगी। ना? हाँ, दैट्स अमेजिंग। और इतनी चुटकी क्योंकि सी है वो अभी। मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बहुत। हाँ, शी इज अ दिस ट्रू, इज मतलब मेरा हीरो, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मेरा बच्चा है। क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे सुना मैम उसको खाना बनाना आ गया है, इतनी छोटी है वो, उसको कुक करना आता है। मैं घर आती हूँ, मेरे को खाना सर्व करती है। आई कैन बिलीव मेरा चाइल्ड बड़ा हो गया है। लेकिन मैं अभी तक उसको 3 ईयर ओल्ड ही समझती थी। 3 ईयर ओल्ड, मैं उसी दुनिया से बाहर ही नहीं आ रही थी। नाउ शी इज 10+। एंड अब वो 11 की हो जाएगी, मैं 35 की हो जाऊंगी। मैं 35 की हो गई, मैं खुद को 35 की हो गई। आई हैव कंप्लीटेड। मेरे को, मैं जब छोटी थी तो हम बोलते थे कि कितने ऐसे साल बोल जी। रही हूँ मैं 35 हूँ, हम में से आधे से ज्यादा हमको लगेगा हमारे कब्र में पैर लटके हुए हैं। ऐसे मत नो बोलो, मैम, 35 तो नहीं हमारे लिए बच्चों वाली उम्र होती है। नहीं, मेरे को ऐसे लगता था कि ऐसे, मतलब हम I was ऐसे going to करके say the बैठे same thing, ये Dipti. हैं, सारे डिस्कस लेस कर देन 30 हैं यहाँ पे इस सेशन में। उनकी तो उम्र ही नहीं बढ़ रही है। बोले से I'm 35, oh God, I can't believe I've become 35। हमारा नहीं। क्या? नहीं मैम, मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगता था ये जर्नी बहुत बड़ी हो जाएगी मेरे लिए, ऐसा ना क्योंकि लगाओ। मैंने दूसरों लोगों के लिए रिस्पेक्ट करो जो नहीं सारे नहीं, मैं अंडर रिस्पेक्ट 30 है। नहीं नहीं, मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट कर रही हूँ। चलो, मजाक था वो। ठीक है, हाँ जी चलो, मैम, ऑल द थैंक बेस्ट टू यू। यू एंड टू योर डॉटर, एंड गॉड ब्लेस यू विद द मोस्ट अमेजिंग लाइफ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। और तुम्हारा क्लिनिक, तुम्हारा काम, तुम्हारा इंस्टीट्यूट सब, और तुम लव ऑफ द लाइफ की वेट करो बस। अब फिर शर्माएगी। वो नहीं, शर्मा अब नहीं रही। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को रिलेशनशिप से डर लगता है। मैं सही बताऊं, मेरा एक बहुत पास्ट बड़ा फोबिया है। एक्सपीरियंस, कोई बात हाँ, नहीं, मेरे सब घर वाले ऐसे भी नहीं इस वजह होते। से कह दिया मुझे। दे आर सारे लोग सर्चिंग। ऐसे नहीं। रोज एक लड़का आएगा, अब देख के जाएगा मुझको। अरेंज मैरिज होगी मेरी, मुझे पता है। हाँ हाँ।
अरेंज मैरिज से भी प्यार तो करना पड़ेगा ना। ओके हाँ मैम। जी, रितु, यू वांट टू शेयर? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग। मैम वो कैमरा। हाँ जी हाँ जी। आ, हाँ मुझे जी। तो सिर्फ दशहरे के लिए कुछ शेयर करना था। हाँ हाँ। मैम शायद एक शेयरिंग और है, उनकी ले सकते हैं पहले हम, मैं लास्ट में कर दूं। ओके, रेनू जी की ले सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। या मैम, हाँ मैम जी। बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था हाँ पता एक है बार। मुझे, लेकिन मैं रोज आपके बारे में सोच रही थी। ओ थैंक यू सो मच मैम। मेमोरीज में और यादों में, ग्रेटिट्यूड में तो आप हमेशा हैं ही मैम। तो बस थोड़ा बिजी, मेरे को लगता है कोई भी चीज एक बार डिसकंटिन्यू हो जाती है ना, उसको फिर से कंटिन्यू करने में मतलब टाइम लगता है, या जो भी समझ लो माइंडसेट लगता है। तो मैंने अभी अपना जर्नल, अभी एक 1 वीक हो गए मुझे स्टार्ट करे हुए। तो लाइक मैं रीड कर रही थी ना, जैसे लिखती थी सारी चीजें अपने ग्रैटिट्यूड। तो मैम मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ, 80% मेरी चीजें जो मैं लिखती थी और चाहती थी वो सब फुलफिल हो चुकी है। और जो हमारे घर का होना था वो भी हो गया डील। बस अब हम अपने नए घर के लिए देख रहे हैं, जो कि ये वी तो वर बहुत वेटिंग बड़ा फ्रॉम है। लास्ट 2 years। सो मैं मतलब मैम ने ऐसे ही बस लिख दिया था कि एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल वंडरफुल हो बाय द एंड ऑफ 2023। और मैम मेरी 2 एग्जीबिशंस बस बैक टू बैक बस एकदम से हुई और इतनी अमेजिंग रही हैं ज्वेलरी की। और मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है मैम। 80% मेरी चीजें फुलफिल हो चुकी हैं। और लेट्स सी आगे भी जो मैंने अब और नया स्टार्ट करा है मैम, सब कुछ आपके कारण मैम। मतलब इतना ग्रैटिट्यूड मैम। मैंने आपसे डाइट ली थी, मुझे पता नहीं कैसे मैं जो चीज 3-4 साल से स्ट्रगल कर रही थी ना अपना वेट कम करने के लिए, मैम मैंने डाइट ली आपकी 3 महीने आई थिंक फॉलो की है। और मुझे रिजल्ट्स तो 1 वीक बाद भी मिलने लग गए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर ठीक है थोड़ा ऑन एंड ऑफ ना मैं खाने पीने लग गई थी, बट मैम मेरा वेट आधा 1 किलो से ऊपर बढ़ा ही नहीं। और अभी भी अब मैंने फिर स्टार्ट कर दी अपने आप ही वो जो पुरानी थी। एंड मैम मतलब सीरियसली मतलब इतना खाने के बाद इतना कुछ करने के बाद भी, हाँ मैं वॉक के लिए रेगुलर हूँ, वाटर इनटेक के लिए रेगुलर हूँ, जो आपने थोड़ी टिप्स दी थी उसके लिए रेगुलर हूँ। बट अमेजिंग मैम, मतलब आई एम रियली वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू। यू आर लाइक, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ यू आर माई कृष्णा, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं कहाँ से कहाँ जाना है। क्लासेस नहीं करी मैंने अटेंड, आई नो, बट नाउ आई एम डूइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी मच ग्रेटिट्यूड टू यू एंड दीज क्लासेस। और हर एक मेंबर जो भी इस जर्नी में है, गॉड ब्लेस देम। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो मच रेनो, सिंसियरिटी आप में है। और आप, जब मैं वेट लॉस आपको करा रही थी तब मेरे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि रेनो ऑलरेडी बहुत पतली थी। मतलब इसको देख के सब बोलते होंगे कि मतलब तुम्हें क्या जरूरत है। आई एम श्योर लोग बोलते होंगे कि या तुम मैम, मतलब क्रेजी हो क्या जो तुमको कराना है। तो ऑलरेडी तो मतलब वो 59 से 53 की जर्नी, बाय गॉड, मतलब दैट इज तो जब तुम मॉडल बन गई तो फिर उसके बाद हो गया था। मैम मैंने अपनी एग्जीबिशन में, दोनों एग्जीबिशंस में साड़ी पहनी थी। एंड मैम यू हाँ। वोंट बिलीव, मतलब आई शेयर द पिक्चर, मुझे एक एक आदमी ने, एक एक बंदे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, मतलब अमेजिंग। एंड मतलब जो ब्लाउज का जो भी डिजाइन था, मतलब 2-3 लोगों ने तो मेरे से टेलर का नंबर मांगा है। तो मेरी फ्रेंड्स एंड ऑल, मतलब रियली मतलब जो मेरे को चाहिए थी ना फिगर एग्जैक्टली। हाँ। इट्स नॉट कि मैं मतलब वही जो आप कह रहे हो कि वेट कोई देखकर नहीं कह सकता था कि ठीक है, बट मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। तो थैंक यू मैम, हेड्स ऑफ टू यू। रेनू को देखा, आई रियली लव मेरी यू। जो फिगर है ना मेरी जो फिगर है ना, सो स्वीट रेनू। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने रोज आपके बारे सोचा है और मैंने बोला है कि इतने टाइम हो गया। और मुझे हमेशा आपकी वो बात याद आती है जो आपने दिसंबर जान में बोला था कि मैं पूरे दिन एक हाउसवाइफ घर में बैठी रहती थी, बच्चे पति चले जाते थे, बस मैं वो सोप ओपेराज और वो टीवी पे नेटफ्लिक्स पे वो पिक्चरें देखती रहती थी, वेब सीरीज पूरे दिन, फिर शाम को फैमिली आती थी, फिर वो वाली लाइफ। सो उससे आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। आई थिंक वो दिसंबर जान की तो बात है, इसी साल यस है मैम, ना। यस तो मतलब मैम। जनवरी से लेके भी अक्टूबर चल रहा है और आपकी लाइफ में तो ये पूरा 360 डिग्री इंटू 10 का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है।
मैम है ना, यू बिल्कुल मैम। बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड यू नो आप अपनी एग्जीबिशंस कर रहे हो, आपका अपना काम जो सुपर सक्सेसफुल है, आपने अपनी हेल्थ का देख लिया, यू लुक सो यंग एंड फिट एंड यू नो गॉर्जियस एंड बिजनेस इज एस्केलेटेड सो मच, और 5 स्टार होटल्स में बस आप एग्जीबिशंस कर रहे हो, इट्स रियली कमेंडेबल। जिस तरह से आई थिंक सारे तो हीरो यही है, हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं। अमेजिंग रेनू, वे टू मैम गो इन लाइफ। तो हैप्पी कि मैं जब इनवॉइस करती हूँ, निकालती हूँ, मेरा अकाउंटेंट है वो निकालता है, तो उसमें प्रोप्राइटर का मेरा साइन लगता है। मतलब नेवर थॉट कि यू नो मतलब इस लेवल पे बिजनेस की हर हाँ, चीज जो आ अपेक्षित आ रही है, समझ आ रही है, हाउ उम्मीद टू आपने मेंटेन सोचा लेजर नहीं। हाँ, अकाउंट्स, amazing. कभी नहीं सोचा Very था good. मैम। मैम थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू Standing मैम। ovation to you. Great. Well done, well fought, and your life ahead will continue to be even more beautiful. Just be excited to see the unfoldings in your life. This is थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Yes, Dipti, Ritu, madam. Hanji. I also want to thank Renu because when she told once in a group, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आपसे डाइट लेना है, and I'm doing the same thing. Thank you so much. And You're also achieving my doing goals. so well. ऑलवेज So you वेलकम also मैम। have to become a model, Sarita ji. Thank I you, make you a thank you. model. Thank you so much. That's my trademark. जब तक आप मॉडल जैसे नहीं दिखने लग जाओगे ना, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी. Thank you, ma'am. And you already are so much, you know, like this is really amazing. I think so graceful. I see so much grace in you. हाँ जी Love रितु, you, ma'am. Good morning, मनाइए ma'am. हमारा दशहरा. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Morning. मैम मैंने दशहरे को और जो हमारी एक प्रैक्टिस होती है ग्रेटिट्यूड की, उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश की है। और रेनू एक सेकंड मुझे उठना हाँ, पड़ेगा. प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। Hi, Ritu. How are you? I'm absolutely fine. Doing Absolutely good. fine. Nice With to see all you of after you. so long. Thank you, thank you, thank you, ma'am. हाँ जी. मैम मैंने दशहरे को और हमारी एक प्रैक्टिस हमें जो करनी होती है, उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश की है। और मैम मैम मुझे भी मॉडल बनना है। आप तो वही. सुपर मॉडल बनना है फिर मुझे। हाँ, आप तो बेसिक सुपर मॉडल हैं. रैंप वॉक करना है आपको. यस, डन. थैंक यू मैम, थैंक यू, आप थैंक यू। वेट कीजिए हमने फरवरी ऑलरेडी तक. विजुअलाइज कर दिया रितु। हाँ नहीं, वो फरवरी तक वेट करो. I'll ensure that you ramp walk. यस, कैन आई स्टार्ट मैम? हाँ जी. सीता मैया ने देखा स्वर्ण मृग मायावी, राम जी से उसे लाने की हट करने लगी। बनाकर भाई लक्ष्मण को पहरेदार, राम जी दिखलाने को हो गए तैयार। झूठी आवाज घराने की राम जी की सुनकर सीता मैया घबराई और भेजा देवर लक्ष्मण को दुहाई देकर। जाने से पहले होकर अति गंभीर लक्ष्मण जी ने दी कसम और खींची भूमि पर एक लकीर। किया आग्रह भाभी से ना करना इस लकीर को अनदेखा। किया आग्रह भाभी से ना करना इस लकीर को अनदेखा। भाभी माँ यह है लक्ष्मण रेखा। भोली सीता जी से साधु रूपी रावण की घिनौनी शक्ल पहचानी ना गई। भाई समान देवर द्वारा खींची गई रेखा को लांग हो गई। रावण ये अच्छे से जानता था लक्ष्मण रेखा में दम है पूरे ब्रह्मांड का। हुआ फिर महासंग्राम, करके विकारों को तमाम जीत गए प्रभु श्री राम। इस तरह हम सभी ने जाना माना समझा और देखा कि कितना कष्टकारी है पार करना लक्ष्मण रेखा। इसी तरह ढूंढावन मैम ने भी फिल्म चार्ट के बीच में बना रखी है एक रेखा, जिसके नीचे जाने से हो जाएगा अनर्थ, क्योंकि वो लकीर है हमारे लिए लक्ष्मण रेखा। अबव द लाइन जाने पर है 8 मधुर एहसास, बिलो द लाइन जाने पर है 11 कटु एहसास। बिलो द लाइन से करती हूँ शुरुआत, रखती हूँ अपनी बात।
यूं ही दिल हर वक्त रहेगा तरसता, अगर जीवन में हम रखेंगे निरस्ता। जैसे ही होने लगे अजीब सी आहट, बिना बात की चिड़चिड़ाहट, खुद की समझ ना रही हो भाषा, तो उठाना द मैजिक बुक, खत्म हो जाएगी निराशा। क्यों तू बंदे आंसू है हर दिन पीता, बिना बात की करनी छोड़ दे चिंता। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना, नहीं करनी अपनी और किसी की भी आलोचना। अपने आप को डीप ब्रीथिंग करके लेना रोक, यदि आपकी तरफ आने लगे क्रोध, वो अपनी ओर खींचने के लिए लगाएगी ताकत। मत आने देना अपने दिल में किसी के लिए नफरत। ये एहसास भी आ जाता है पराया, दूसरों की वस्तुओं से होने लगती है ईर्ष्या। मत छीनना अपनी खुद से आजादी, दिल को समझाना ना माने खुद को अपराधी। कभी कभी बिना बात के ही वो बनने लगती है आपकी प्रेयसी, इस तरह दिल पर छा जाती है मायूसी। उसका ही बचता है संसार में डंका, जो मन में नहीं रखता आशंका। अब अब द लाइन के एहसास बताऊंगी, जो यदा कदा ग्रुप में शेयर करते हैं हमारे आदरणीय। फिर से दोहराऊंगी, जो चाहिए आपको ग्लोबली फेम, तो कीजिए सबसे प्रेम ही प्रेम। उसके पास सदा रहता है प्रचुरता का खजाना, जो व्यक्ति करता रहता है हर घड़ी शुक्राना। वो इंसान सदा रहेगा संपन्न, जो रखेगा हमेशा अपने आप को शांत और प्रसन्न। वो हर समय करेगा महसूस सुकून, जिसका लक्ष्य हो सबको खुश रखना, अच्छे कर्म हो जिसका जुनून। मन में सभी की मदद करने की रखेगा जो चाह, इस चाह से मिलता रहेगा उसे जिंदगी में और भी उत्साह। जिसने ग्रेटिट्यूड में रहना ही बना लिया अपने जीने का ढंग, उसके जीवन में रहेगी हमेशा खुशियों वाली उमंग। उसे शाबाशी ही शाबाशी मिलेगी हर दिन, उसे शाबाशी ही शाबाशी मिलेगी हर दिन, जो रखेगा हमेशा कामयाबी की उम्मीद। उसे मिलेगी हर शय में तुष्टि, जो इंसान रखेगा अपने मन में संतुष्टि। बिलो द लाइन इन 11 एहसासों के अलावा और भी होते हैं द्वेष, जो बैठे होते हैं हमारे मन मस्तिष्क में पहनकर सुंदर वेश। लेकिन हमें अबव द लाइन में और भी छुपे हुए सुरीले रागों को जानना है, बनाकर उनका एक खूबसूरत हार अपने गले में पहनना है। तभी होगी बुराई पर अच्छाई की जय, हम सभी निर्भीक होकर मना सकेंगे खुद की और दूसरों की विजय। अपनी वाणी को अब देते हुए आराम, अपनी वाणी को अब देते हुए आराम, बस अंत में यही कहूंगी, जय श्री राम। दैट्स इट मैम। कैसे करें आपको So पैट करें beautiful. बैक की वाहवाही करें, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करें, इतना सुंदर क्रिएशन। पहले तो 10 उन्होंने Beautiful. पॉइंट्स बताए हमको कि ये प्रॉब्लम्स है हमारी जिंदगी में, फिर बताया कि देखो ये 10 चीजें करो, क्योंकि दशहरा है तो 10 नंबर है, तो ये 10 चीजें करो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, है ना। दिस इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, आई थिंक यू कैन राइट अ बुक ऑन इट। Absolutely. इसको थोड़ा Feeling chart इलाबरेट कर सारा का करके करो तो सारा. किताब की संरचना हो जाएगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल. यस दिस मैम। इज सो Extremely अमेजिंग। beautiful. हाँ, मतलब जी कितना मैम। ज्यादा इंसाइटफुल आप हो, मतलब इट इज Beautiful. इनकम्पेरेबल। She was asking about the feeling chart yesterday. मुझे लगा वैसे ही पूछ रही होगी. पता ही नहीं इसके दिमाग अमेजिंग। में क्या क्या चलता रहता है हाँ, मैम. मुझे नहीं पता था कि ऊपर के 8 है, और ऐसे कभी गिनती तो की नहीं है हमने, मुझे हाँ. एक्चुअली नहीं पता। मैम मेरे मेरे माइंड में ये बहुत टाइम से चल रहा था, बट मैंने तभी Beautiful, सोचा था इसको beautiful. दशहरे पर ही वो प्रेजेंट करूंगी It's कि incredible. You have वो got such a vision ना, आपने ये देखा, अरे समझा, वही सोचा. मैं कह रही हूँ कि इनसाइट्स देखो कि कितनी My God. डेप्थ है उसमें। Yeah. This is so surreal. This is not normal, you know. You have some talent in you to introspect, analyze, you know, like किसी भी चीज को इतने अच्छे से समझने की, इतने अमेजिंग इंसाइट होने की, इनक्रेडिबल ऋतु। आई थिंक क्या ही तारीफ के शब्द, आपकी भाषा में तो हमारे मतलब कौन सी वाले तारीफ के शब्द होते हैं जो इतने, बट दिस इज इनक्रेडिबल। तुम ही मैम बता वो दो वो ऋतु. नहीं मैम, वो आप लोग जो बार बार बोलते हैं ना बिलो द लाइन बिलो द लाइन, वो
वो दिमाग में ना मेरे कहीं कहीं वो हो रहा था, बिलो द लाइन, नहीं जाना नहीं जाना नहीं हाँ, जाना। नहीं जाना है। वो लाइन जो है ना इसे उस छोड़ो, चीज अब को ये याद रखो, अलग मुझे होता है। अबव द लाइन रहना है, अबव द लाइन रहना है, अबव द यस लाइन रहना है। यस, वो सच में लाइन वो जो है ना लक्ष्मण टिक रेखा गया है, मेरे सच मन में में। ही लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए। Amazing. अमेजिंग। Incredible. Yeah. थैंक यू सो मच। ये आप लोगों की God टीचिंग का ही bless असर है। you. और मैम वो जो एनपीएल टेक्निक आप बोलते हो ना, तो वो मेरी ब्रेन की वाइज ना वो अच्छे से वो नई नई डेवलप होती जा रही है। तो मैम बोलती हूँ मैं लिटरली ऐसे ना, जैसे मैम बोलती हैं एनपीएल टेक्निक, तो भाई वो जो मेरे जितने भी माइंड में, जितनी भी मेरी ब्रेन में वो जंग लगी हुई वायर्स हैं, सब वो अब खराब हो चुकी है, इनमें रस लग चुका है। अब उनको मुझे ना रीडेवलप करके अब उनको गोल्डन कलर का करना है, सिल्वर शाइनिंग शाइनिंग, ऐसे ऐसे मैं करती हूँ मैम। लिटरली मैं जेन्युइन ऐसे ऐसे करती हूँ। मैम ने बोला ना वायरिंग चेंज करनी है, तो तेरी को वो जरूरत है अपनी वायरिंग चेंज करने की। तो थैंक यू सो मच मैम। आप जो This is really बोलते हो amazing. उसको फॉलो करने की मैं कोशिश करती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, मुझे पता है आप कर रहे हो, तभी तो आप वहां से यहाँ तक आए हो, वरना आधे लोग तो ढल ही जाते हैं, है ना। सो इतने अच्छे से, और अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अभी तो शुरुआत है ना। यस यस मैम, ऑफ और इतने कोर्स। सारी मम्माज आपको मिली हुई है यहाँ पे। यस है यस ना? यस 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 सबसे बड़ी ऑफ कोर्स ब्लेसिंग, और ऑफ कोर्स मैम। सबका हाथ आपके सिर के ऊपर है। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल अभी मैम। चुभेगा सिर पे, आपके बाल आ रहे हैं नए नए। इस बार वाले बाल यस बहुत सुंदर होंगे। कब है आपकी लास्ट कीमो? मैम अभी नेक्स्ट वीक में है। नेक्स्ट वीक लास्ट है? नहीं नहीं लास्ट नहीं मैम, अभी 5th है। वो 5th बस है? ठीक है हाँ, बस मैं बस वो 8 50-50 तो पे है हूँ। टोटल? यस मैम। 8 है ना टोटल? यस यस मैम। इतना ही बोला, हो सकता है डॉक्टर बोल दे आपको जरूरत ही नहीं हो, अब आगे। यही होएगा मैम, आपने बोल दिया तो वही, हो जाएगा बस। एग्जैक्टली वही। ये डॉक्टर कहेंगे अब क्या कीमो की जरूरत है, आप तो कीमो की 10 गुना माँ बन गई हैं। सो अब आपको वो कोई बात जरूरत तो नहीं है। सही है जो दीप्ति ने बोला, Yeah, मैं but यही you're growing your बोलने वाली hair already. This is really amazing. And it really doesn't matter the biggest of the models when they walk the ramp. We'll send you some of the pictures. And Priya, we would be having now of models who've been bald, and when they walk the ramp, they've been like really amazing. मेरे पास हैं, मैम मैं आपको आप भेजूंगी। जारा की देखना, जारा की मॉडल्स आर लाइक है दैट ना? ओनली। हाँ, Zara की models जारा don't की have, मॉडल्स yeah, आर लाइक दैट ओनली या yeah. पता Zara की नहीं बट models, yeah. भी मेरे साइज के कपड़े तो नहीं मिलते लेकिन। सब मिल जाता Zara है। पे किसने बोला? जारा थैंक जारा यू। जारा पे सब मिल जाएगा। दीप्ति से पूछो या मुझसे पूछो। Encyclopedia. My wardrobe is 70% Zara. Even mine is Zara like are doing मिल jeans a जाएगा। lot. Lots of jeans are bought from there, Zara, हाँ, but tops नहीं मिल रहे मेरे साइज के। अच्छा, कोई बात नहीं, हम क्रिएट करेंगे, रितु आप आप चिंता इसको क्यों कर रही मैजिक क्यों लो, यू हैं? नेवर नो। आप एक बार यू टुक इट एज ए मैजिक, यू नो, बिकॉज हम दोनों ने जारा बोला। एक Zara. बार आप सोचना जारा की कभी कोई आती है ना, जस्ट कीप चेकिंग जारा, यू Yes, नेवर नो। yes, ये आपका yes. इनका नेक्स्ट टारगेट है, Zara का एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लेना। नहीं इसका Zara कुछ मेहरबान जारा कर की दो। आपको जारा हम की डिस्कस कर मॉडल रहे हैं, कंपनी को स्पॉन्सर करने पड़ेंगे हमारे सेशंस। FTV में स्पॉन्सर्ड जो बाय सुपर Zara, मॉडल्स आती है, मैजिक्स एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर दीप्ति वर्मा, पावर्ड बाय Zara इंटरनेशनल। चलो, बाय कॉपीराइट बाय। लगा देंगे। Yes, ma'am. Yes. Okay, have a beautiful Dashera and a lovely holiday. And let's meet tomorrow morning in the best of happiness. Recreate life, do the magic work today, and a lot of self-love. Thank you so much. Thank you Thank you so so much. much, Share ma'am. this Thank with you. Thank you, feeling Ritu, of for Thank you, making Dipti. amazing. every Thank you. festival so Happy special. weekend. Thank you so Thank much. you. Bye-bye. थैंक यू Thank you, मैम, ma'am. थैंक यू सो मच।